Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will discuss regarding the Pythagoras theorem. Before going to the detailed proof of Pythagoras theorem, first let us do something before going to the proper proof. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, the triangles on both sides of this perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC and we draw a perpendicular from this right angle on its hypotenuse AC, so that two triangles are formed. One is ADB and another is CDB or DDC. Both of these triangles are right triangles at D. So first we will show that these triangles are similar to this triangle ABC and they are also similar to each other. Proof, simple proof हम कर लेंगे इसका. In triangle ABC and triangle ADB, we see that angle A is equal to angle A, as angle A is common to both of the triangles. Angle A is an angle of a triangle ABC and angle A is also an angle of triangle ADB. So this angle A is common. Then angle ABC is 90 degree. Angle ABC is 90 degree. And also angle ADB is 90 degree. ADB. Each a right angle. Since two angles of two triangles are equal, then third angle will be also equal because the sum of the angles of a triangle is equal to 100 degrees. Therefore, the third angle remained in this triangle. ABC is angle C. And in triangle ADB, angle A is equal to angle A, आ गया हमारा angle A, then this angle ADB भी आ गया, we are left with this much angle, say angle 1. So angle C is equal to angle 1, we call it as remaining angle. Remaining angle means because the sum of the angle of a triangle is 180, दो angle तो बराबर आ गए, तीसरा angle definitely बराबर होगा, remaining angle. Therefore, triangle ABC is similar to triangle AD and this one जहाँ पर लिखा हुआ है, one लिखा हुआ B पर, B by triple A similarity हो गया हमारे एक. Similarly अगर हम again in triangle ABC, हम ABC triangle दोबारा ले लेंगे and triangle BDC लेंगे, BDC. यहां हम देखते हैं पहले 90-90 लेंगे, ABC एंगल इसमें है, ABC 90 डिग्री है इसमें and BDC is also 90 डिग्री. पहले हम यही दो एंगल ले लेते हैं 90-90, यानी हमारी ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री है और BDC में एंगल BDC 90 डिग्री है, each 90. Then we will take the common angles. Angle C is common to both triangles. Angle C is equal to angle C, common. Then we are left with third angle. Here we have angle A in triangle ABC
and for the triangle this BDC, this much is left with us, say angle 2. It is called a remaining angle or third angle, because sum of angles of a triangle is equal to 180 degrees. Two angles are already equal. Two angles of one triangle are equal to two angles of the other triangle. So third angle will also be equal. Therefore triangle, यहाँ A से शुरू कर लेते हैं हम, A फिर B फिर C, A B C सिमिलर टू, जब यहाँ हमने A से शुरू किया तो यहाँ 2 से शुरू कर लेंगे, 2 से, दैट मीन्स फ्रॉम B. फिर यहाँ B से किया था तो यहाँ D से आएगा, C तो कॉमन ही है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, तो इसका इक्वेशन का नाम हम सेकंड रख लेंगे. सो वी प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB एंड सिमिलर दिस ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC. So these two triangles are similar to the same triangle. When triangles are similar to the same triangle, they are similar to each other as well. So from first and second, जो हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, from first and second, we can take ये triangle ABC is similar to triangle ADB. Triangle ABC is similar to triangle BDC, means both the triangles are similar to the triangle ABC. एक चीज तो वो प्रूव हो गया that this triangle ABC is similar to triangle ADB and this triangle ABC is similar to triangle BDC. यानी दोनों triangle जो हैं ये पूरे इस triangle के similar हैं, and they are also similar to each other because triangle is similar to some triangle are similar to each other. Then triangle ADB similar to triangle BDC, यानी ये ट्रायंगल ABC की सिमिलर है और BDC भी ABC की ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसलिए ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे. तो पहली बात ये थी, डिटेल्ड हमने किया. अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. कैसे कर लेंगे डायरेक्ट, पहले वो देख लेते हैं हम. मसलन अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं. Let us take a right triangle again. Say ABC, and let us draw a perpendicular from this B, right? ये तो right angle है, this angle B is right angle. Let us draw it perpendicular on the hypotenuse. Suppose one of these two angles, let us call this theta. Say this angle is theta. Definitely this will be 90 minus theta. When one angle is theta, अंदर will be 90 minus theta. Since the यहाँ भी ये angle 90 होगा. Since the sum of the angles of a triangle is 180 degrees and angle BDC is 90, therefore sum of these two angles must be 90. One of them is 90, अंदर must be 90 minus theta. Similarly in triangle ADB, one angle is 90, another is 90 minus theta. Sum of the angle of a triangle is equal to 180, then this angle A must be theta, so that the sum will be 180. Now we will see directly proof लेंगे हम इसका. In triangle ADB and triangle BDC, we see angle ABC, this ADB is equal to BDC, each 90 degree. Angle A is equal to angle DBC, each theta, each is equal to theta, and angle ABB
is equal to 90 minus theta. Therefore, all the three angles of one triangle are equal to the three angles of the other triangle. Then the two triangles are similar. We say therefore triangle, यहाँ से शुरू कर लेते हैं A, यहाँ शुरू होगा with B, तो फिर लेंगे यहाँ B, तो यहाँ फिर आएगा फिर C. अगर यहाँ से शुरू कर लेंगे तीसरा तो D आएगा, यहाँ भी आएगा D. ऐसे ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD. अगर हम चाहेंगे कि ये D चेंज कर लेंगे सेंटर में, फिर C लास्ट में लिख सकते हैं, तो यहां भी D आएगा सेंटर में, D लास्ट में लिख सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं ADB ट्रायंगल BDC. यानी अगर यहां हम चेंज लेंगे, A लास्ट पर लेंगे, यहां B लास्ट पर लिखना चाहिए. सो वी कैन चेंज देयर ऑर्डर, लेकिन दोनों का ऑर्डर चेंज होगा, किसी एक में हम ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं. अब क्यों ये सिमिलर? ट्रिपल ए. तो ये पहली चीज थी कि हमने कहा कि जब हम किसी 90 डिग्री एंगल से हाइपोटेन्यूज पर डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो जो ट्रायंगल्स दो बनती हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स पूरी ट्रायंगल के लिए सिमिलर होती है और ये आपस में भी सिमिलर होती है. पहली बात ये. नाउ नेक्स्ट वी विल डू समथिंग डिफरेंट. Since this Pythagoras theorem exists in the syllabus of 8th class, 9th class and 10th class as well, so let us do an activity first. Say this is the right triangle. Let us take its units as 3, 4 and 5. Suppose this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, this is 5 centimeter. First we will draw a right triangle and let us draw the squares on its sides. मैंने 3 स्क्वायर वाला ले लिया, यहां भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं 4 स्क्वायर, क्योंकि यहां का एक साइड 4 है तो मैं 4 साइड वाला स्क्वायर बना लूंगा. This is a 5 centimeter side. So we will draw a square of 5 centimeters, just like this. मान लीजिए इसका नाम हम ABC लेते हैं. फिर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर यूनिट में, मसलन एक यूनिट में. इसके 3 हिस्से कर लेंगे, यहां से भी इसके 3 हिस्से कर लेते हैं. तो हर एक जो ये छोटा स्क्वायर बन गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितने बन गए हमें गिनती लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहां 4 वाले में भी अगर हम कर लेंगे 4 हिस्से, 2 हिस्से हो गए और 2 4, यहां से भी 4 ही होंगे इसके हिस्से. मान लीजिए हमने 4 हिस्से कर लिए, यहां भी गिनती लिखेंगे इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो 5 वाले हिस्से में भी कर लेंगे 5 हिस्से, मसलन 1 2 3 और ये 2 5. यहां से भी कर लेंगे 5 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएंगे ये. तो यहां भी गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25. तो जब हमने ये हिस्से कर दिए इनके, फिर हम देख लेते हैं कि लेट अस ऐड दीज. से यहां जो हमने ले लिए दीज वर 9 और इनको ऐड कर लेंगे. यहां हमारे पास 16 है और यहां जो हम देखते हैं दीज आर 25. वी सी दैट 9 प्लस 16 इज इक्वल 25. यहां 9 बन गए, यहां 16 बन गए, यहां 25 बन गए और इनका साइज एक ही रहेगा. दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर. यानी 3 स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका एक साइड BC है
जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, सो इट इज BC स्क्वायर। और 4 जो है 4 स्क्वायर, इसकी लेंथ जो साइड है AB मींस AB स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी AB स्क्वायर। वो 4 हो गया, 4 इंटू 4 16। और हाइपोटेन्यूज इसका 5 सेंटीमीटर लंबा है, इसके 5 ऐसे हो गए, तो हाइपोटेन्यूज का नाम है AC मींस AC स्क्वायर। सो वी फाइंड दैट, say this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. That can be written as BC square plus AB square is equal to AC square. इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं. We can write first AB square, then we can write BC square is equal to AC square. तो let us see whether this is always true, और हमने एक particular case लिया, यहाँ तो true हो गया. Now we will see whether this is true for all cases. So for that we will go for an analytical proof, a detailed analytical proof. Now we will start, and that theorem is called a Pythagoras theorem. First definition, statement. Theorem. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares is equal to the sum of the squares on other two sides. Now we have to prove that if we are given a right triangle, this is a right triangle, say A, B and C. So given इतना ही दिया हुआ कि that we have a triangle, right triangle. ABC is a right triangle. ABC is a right triangle. ABC is a right triangle. Right angled at B. Right angled at B. ABC is a right triangle. Right angled at B. So we have to prove that as per our question, as per our theorem, the square of the hypotenuse, means hypotenuse is AC, so AC square. The side opposite to 90 degree is called the hypotenuse, so AC is hypotenuse, means the square of the hypotenuse is AC square. We have to prove that this AC square is equal to sum of the squares on other two sides. Other two sides, one is AB, another is BC. So we have to prove that this is equal to AB square plus BC square. In general, इससे पहले जो हमने यहाँ किया, हमने इसको डिवाइड किया था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर वहाँ हमने इनको डिवाइड किया था छोटे छोटे स्क्वायर्स में, फिर हमने उनको ऐड किया था. वो एक तो पर्टिकुलर एग्जांपल हो गई, लेकिन इन जनरल में कोई भी लेंथ हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है. अच्छा, let us do it analytically. Every proof is based on a previous knowledge. तो let us start a proof with some previous knowledge. Previous knowledge जो हमने इससे पहला वाला वो थोड़ा सा होमवर्क किया, थोड़ा सा वर्क किया, on that basis we will prove this theorem. We will draw a perpendicular from this right angle upon its hypotenuse, say BD. Draw BD perpendicular on AC. Proof. अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, because we have proved this triangle ADB, triangle ADB similar to triangle ABC.
by triple A similarity. Because angle A is common to both triangles, angle D and angle B are 90 degrees, and third angle is also, then the remaining angle will be also equal. So their sides are proportional. When triangles are similar, their sides are proportional. तो पहले हम 90 के अपोजिट ले लेंगे. मान लीजिए यहाँ जो हमारे पास ट्रायंगल ADB है, ADB इसका 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो इसका अपोजिट वाला साइड जो है दैट इज AB. लेट अस डिवाइड इट बाय जो हमारा एंगल B है, यहाँ एंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है, इसका अपोजिट वाला साइड है AC. तो हमने पहले वो रेशियो लिया जो 90 के अपोजिट है, 90 के अपोजिट है. अगर हम कॉमन एंगल के अपोजिट लेंगे, जो छोटी वाली हमारी ट्रायंगल है, इसके कॉमन में BD आता है. BD का कोई यहाँ काम ही नहीं है एज पर जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BD के साथ डायरेक्ट इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम कॉमन एंगल के अपोजिट नहीं लेते हैं. अब लेंगे हम इसका थर्ड कौन रह गया, यहाँ थर्ड एंगल ये वाला रह गया ABD. इसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज AD. और ये वाला एंगल जो है यहां इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये तो आ गया 90 के बराबर और ये कॉमन रह गया, इसलिए ये वाला पोर्शन आ गया इस एंगल के बराबर. क्योंकि इस एंगल के अपोजिट में AD है तो मैंने AD ले लिया. डिवाइड कर लेंगे इसके बराबर. ये एंगल जो है बड़ी ट्रायंगल में कौन सा साइड इसके अपोजिट है, AB है, तो AB आएगा. इनका क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, AB इंटू AB मीन्स AB स्क्वायर. यहां से आएगा AC इंटू AD, AC इंटू AD, यहां से AC इंटू AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर. लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे. सिमिलरली जो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है BDC, BDC is similar to triangle ABC, ABC by triple A. because एक तो जो यहां मैंने 90 एक जगह रख लिया, मसलन BDC, D तो 90 है सेंटर में लिख लिया, B यहां भी 90 है तो सेंटर में लिख लिया, C कॉमन है तो लास्ट पे लिख लिया, यहां भी और यहां भी, और यहां बच गया फिर B ये वाला हिस्सा, और यहां बच गया A ये वाला, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. देयरफॉर पहले 90 के अपोजिट, मसलन जो छोटी वाली ट्रायंगल है, यहां इस 90 के मुकाबल में जो साइड है दैट इज BC, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इन स्मॉल ट्रायंगल मींस ट्रायंगल BDC, दैट इज BC. इसका रेशियो लेंगे जो बड़ी ट्रायंगल में 90 के अपोजिट है, यहां 90 वाला एंगल ये है, इसके अपोजिट में आ गया AC इज इक्वल टू, मैंने पहले ही कहा कॉमन एंगल के खिलाफ नहीं लेंगे, जबकि यहां कॉमन एंगल के खिलाफ आता है BD. तो BD का कोई काम नहीं है हमारे यहां प्रूफ में, कोई इसका वो हमारे मददगार नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे. तो तीसरा एंगल ये वाला बचता है DBC, तो इसका अपोजिट जो है दैट इज DC. अब वो ले लेंगे और इस एंगल के बराबर यहां एंगल A है, तो पूरी ट्रायंगल में, पूरी ABC ट्रायंगल में इस A एंगल के अपोजिट में BC है, इसलिए वो यहां आएगा. यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो बराबर होता है. तो क्रॉस कर लेंगे AC इंटू DC, AC इंटू DC इज इक्वल टू BC स्क्वायर. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट and equation second, we will get AC into AD, AC into AD प्लस ये हो जाएगा AC into DC इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. टेक आउट AC कॉमन, AC कॉमन ले लो, AD
प्लस डी सी। सो हमारे पास आएगा ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, कंबाइन दिस ए डी प्लस डी सी, इट इज अगेन ए सी, इट इज अगेन ए सी, आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हेंस ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So we proved that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, AB square plus BC square। अगर हम किसी दूसरे मेथड से जाएंगे उस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मसलन अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे ही रहने देंगे और यही कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे, लेकिन प्रूफ में मॉडिफाई कर लेंगे किस बुनियाद पर कि हम एक दूसरी थ्योरम का यूज कर लेंगे। एक दूसरी थ्योरम है हमारे पास कि इन ए ट्रायंगल if the ratio of the areas of similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। अगर हम उस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे उससे भी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। कैसे लेंगे? हम ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ADB similar to triangle ABC, अभी हमने लिखा ट्रिपल ए सिमिलरिटी। Therefore इन दो ट्रायंगल्स का एरिया रेशियो में लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा। चलो 90 के अपोजिट, यहां 90 के अपोजिट AB है तो उसका उस साइड का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां 90 के अपोजिट में AC तो AC स्क्वायर आ जाएगा बाय थ्योरम जो इससे पहली थ्योरम है ना। अगर इस थ्योरम का 6.7 हम नाम 6.8 रख लेंगे तो 6.5 बाय थ्योरम 6.5, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका फर्स्ट नाम रख लेते हैं। दोबारा लिखेंगे ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, फिर वही ट्रिपल ए सिमिलरिटी जैसे हमने पहले दिखा दिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स का रेशियो ले लेंगे, यहां 90 के अपोजिट आएगा BC स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आएगा AC स्क्वायर, 90 के अपोजिट ही साइड्स हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम इनको ऐड कर लेंगे यहां एलसीएम आएगा ट्रायंगल ABC, दोनों के डिनोमिनेटर में है ट्रायंगल ABC, और यहां ऊपर जो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो यहां जो आएगा AB स्क्वायर, यहां AC स्क्वायर डिनोमिनेटर तो एलसीएम आएगा AC स्क्वायर, ऊपर रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इन दो ट्रायंगल्स को जब हम ऐड करते हैं ये बनती है ट्रायंगल ABC, तो इसका न्यूमरेटर भी आएगा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और डिवाइड में भी आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो राइट हैंड साइड में आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा AC स्क्वायर। ये दो कैंसल होंगे आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इससे यह चीज साबित हो गया कि हम कोई भी थ्योरम कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हमारे पास इससे पहले हमारे पास कौन सी नॉलेज है, उसी नॉलेज के एतबार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रूफ्स ऑफ दिस थ्योरम, ऑलमोस्ट अराउंड 400 प्रूफ्स। तो हम किसी भी प्रूफ को ले सकते हैं, बशर्ते है कि हमें उससे पहली वाली नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज मालूम हो। तो स्टूडेंट्स इफ students are well aware about the previous knowledge of any theorem, they can use it and prove it. So next time we will go ahead with something else. Thank you.